Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you second year students? Hope so you all are fine. May Allah Ta'ala keep you in His protection. Ameen. Dear students, yesterday we have done first law of Kirchhoff's. You can say Kirchhoff first rule. We have done yesterday. So can you state what is Kirchhoff first rule? All the sum of all the currents is equal to 0. Sigma I is equal to 0. This is known as Kirchhoff first rule. So today we will move towards Kirchhoff's second rule. As you know, Kirchhoff's rules deal complex network of electronic circuits. Kirchhoff's second rule states that the algebraic sum of voltage changes in a closed circuit, this is closed circuit, in a closed circuit or a loop must be equal to 0. So now to understand this statement, let's see, we have a closed circuit having two voltages represented by E1 and E2. There are two resistances R1 and R2. Now we are going to understand how charges flow through this circuit and how can we deal if there are a number of resistances and a number of voltages. We know that a steady current is equivalent to a continuous flow of positive charges through the circuit, and we also know that a voltage change or a potential difference, same meaning, voltage change or potential difference is equal to the work done on a unit positive charge or energy gained or lost by it in moving from one point to other. To understand this statement, come to the circuit. This current is flowing through the circuit in anti-clockwise direction. How? Because there are two energy sources, batteries having EMF E1 and E2. Suppose we have taken E1 is greater as compared to E2. When E1 is greater than E2, then this current flows in anti-clockwise direction from E1 to E2. From E1 to E2. So this is your anti-clockwise direction. You know very well about clockwise direction and anti-clockwise direction. So now we are going to write how can we solve its equation, how can we write its solution to calculate equations component like E1, E2, R1, R2, any unknown component. Okay, we are going to deal such type of circuits by writing their equations. Suppose when positive charges, suppose delta Q comes towards this E1, first they face this lower potential. This small line show lower potential and this big line show higher potential. When the charges delta Q, charges are represented by, I am writing here, charges are represented by delta Q. When charges comes to this E1 lower potential and they pass towards the higher potential, they go from this lower potential to higher potential. So when anything go from lower potential to higher potential, it gains energy, right? It gains energy. So the equation of this point is written as E1 delta Q. E1 is the EMF of the cell or battery and delta Q is the number of charges passing through this point, passing through this battery. E1 delta Q, when charges move from lower potential to higher potential, okay, they absorb energy, they gain energy and then jump from this lower to higher potential. Understand, ये easy सी आसान सा concept है. जब lower से वो उन्होंने higher की तरफ जाना है तो they have some energy, तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी तो वो इसको क्रॉस करके जाएंगे आगे. सो दैट्स वाई विल राइट एज E1 डेल्टा Q. जब वो लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास साइन होता है प्लस. मूव टू नेक्स्ट. नाउ द चार्जेस आर गोइंग टू मूव दिस रेजिस्टेंस R1. आप यहाँ देख सकते हैं एक ये वाला टर्मिनल है रेजिस्टेंस का एंड सेकेंड टर्मिनल दिस वन. यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ करंट होगी, जितना वोल्टेज होगा वो R1 में यूटिलाइज हुआ और फिर यहाँ जाके वो थोड़ा कम हो जाएगा. इट मीन्स नाउ चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये वाला पॉइंट क्या है, हायर है, और ये वाला क्या एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये लोअर है. तो चार्जेस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर तो उनके पास अभी एनर्जी है, तो इससे को जब क्रॉस करेंगे कुछ एनर्जी जो है, कुछ वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस भी यूटिलाइज करेगी और यहाँ जाके वोल्टेज थोड़ा और कम हो जाएगा. तो इट मीन्स नाउ करंट चार्जेस आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल.
when the charges move from higher to lower potential, there is negative sign. Lower to higher potential positive sign and higher to lower potential negative sign. अब है क्या क्या यहाँ पर, चार्जेस हैं, करंट है और R1 है. आप फिर इसको इस तरह से राइट करेंगे, -I, R1 is this resistance and delta Q number of charges. As this is a closed circuit, so now charges are moving towards E2, second battery, second voltage, that is represented by E2. When they pass through this E2, first they have higher potential and then they have lower potential. Now they are moving from higher potential to lower potential, so they release some amount of energy. When they move from higher to lower potential, higher से जब lower की तरफ जाएंगे तो कुछ amount of energy वो क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि उन्हें कम एनर्जी चाहिए, हायर से वो लोअर की तरफ जा रहे हैं. So when the charges move from higher to lower potential, just like here, again negative sign, and we will write it as -E2 and charge is represented by delta Q. And move on, because it is a closed circuit, closed loop. When charges comes towards this R2, then there are two terminals of this resistance, this one and this one. At first terminal they are at a higher potential, while some of amount is potential is utilized, and after that on reaching second terminal they have some lower amount of potential as compared to first one. So in this condition they are again moving from higher to lower, again negative sign, and it is all again written as current is represented by I, resistance is R2, and number of charges delta Q is equal to 0. So Kirchhoff's second rule states that algebraic sum of voltage changes in a closed circuit or a loop must be equal to 0. So we have state Kirchhoff's second rule by writing this equation with the help of this given circuit. As you can see here, delta Q, delta Q, delta Q, delta Q, same. So you can write it as, so Kirchhoff's second rule can be written as E1 minus I R1 minus E2 minus I R2 is equal to 0. बच्चों, आप लोगों ने जो मैंने समझाया है इसको आपने एटलीस्ट 3 टाइम इसको सुनना है, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ अभी. ये देखें इस पेज पर, ये जो एग्जांपल है आपकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और ये इतनी लॉन्ग चल रही है. अगर आपको मेरी बात समझ आ जाती है ना, तो आपके लिए कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि किस तरह से इक्वेशन हम राइट करते हैं. तो इक्वेशन इस तरह से राइट की जाती है जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है. और यही कुछ रूल जो मैंने आपको समझा दिया है ना, पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, यही रूल्स आपकी बुक में भी रिटन है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. So we have solved these two equations. We have written, this is the statement, the algebraic sum of potential changes in a closed circuit is 0. We have seen that this rule is simply a particular way of stating the law of conservation of energy in electrical problems, okay, is equal to 0. Before applying this rule for the analysis of complex network, it is worthwhile to thoroughly understand the rules for finding the potential changes as I have discussed in detail. मैं आपको चेंजेस बता चुकी हूँ कि कहाँ नेगेटिव आएगा, किस तरह पॉजिटिव लेंगे. तो यहाँ पे 2 रूल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हम पढ़ चुके हैं. यहाँ मैंने आपको समझा दिया है. फर्स्ट वन इज़, इफ़ अ सोर्स ऑफ EMF इज सोर्स ऑफ EMF. अब हम यहाँ देख लेते हैं, इस फिगर को भी देख लेते हैं. ये वाले जैसे E1 इज सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जस्ट लाइक हियर. नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे ये उलट बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है. तो मैं ये कह लेती हूँ, इससे आप लोग कंफ्यूज ना होना, मैं ये बात कर लेती हूँ, मैंने उस डायरेक्शन को छुपा लिया. मैं कह रही हूँ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अगर ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जैसे हमने अपने सर्किट में डिस्कस किया था, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव. हमने पोटेंशियल चेंज को क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था. किस कंडीशन में, जब व्हेन EMF इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. देखो बेटा, ये हमने जो डिस्कस किया है अभी यहाँ पर, ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो हमने इसको क्या लिया, पॉजिटिव ही लिया है. तो आपके सामने इक्वेशन भी मैंने राइट की है, ये इक्वेशन.
प्लस E1 डेल्टा क्यू एंड रिवर्स, और दूसरा क्या है इसका उलट है, इट इज़ नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ़ आ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर कोई रेजिस्टर, ये देखें करंट की डायरेक्शन में, कोई करंट इस साइड पे फ्लो करके आ रहा है ना आपके राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है, ऐसे इधर आ रहा है, तो अगर उसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आ रही है R1 जैसे रेजिस्टेंस इसके रास्ते में है, द चेंज इन पोटेंशियल इज़ नेगेटिव। देखिए हमने चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव ही ली थी, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था, मैंने ये कहा था आप लोगों से, मैंने कहा इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें, इसके 2 टर्मिनल्स अपने माइंड में सेटअप कर लें कि 1 टर्मिनल ये है आपके पास, सेकंड ये है, इस टर्मिनल पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सेकंड पे पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो अगर यहाँ पे सपोज 10 वोल्टेज है तो कुछ ये रेजिस्टेंस भी तो यूटिलाइज़ करेगी ना, कुछ इसमें भी तो खर्च होगा, ये भी तो यूज़ करेगी, और यहाँ जाकर हो सकता है वो बहुत थोड़ा इसने यूज़ किया हो, 9.9 रह जाए, लेकिन ये हाई हुआ, ये लो हुआ, और हायर से लोअर की तरफ जो हम जाते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, लोअर से हायर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर 2 रूल्स वी हैव डिस्कस्ड नाउ एंड इट इज़ पॉजिटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। So now girls, it's your homework to try to write down the equation of this given circuit. Okay, there are 2 loops we have discussed in second law, Kirchhoff's law. There is a single loop, एक loop है ना, ये closed है, while in this diagram there are 2 loops, one is A B C D A and second one is C B E F C। अगर मैं चले आपको इक्वेशन 1 में राइट कर देती हूँ, दूसरी आप लोग राइट करेंगे, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, और आप लोगों ने मेरे साथ साथ इक्वेशन राइट करने में, अंडरस्टैंड करने में मेरी हेल्प कर ली है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इक्वेशन हमारी, हमने कौन सा लूप लिया है, वी हैव टेकन लूप A B C D A, कंसीडर वी हैव टेकन दिस लूप। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सपोज़ के अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की थी, तो हमने ये कहा था ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये डिपेंड करती है EMF की वैल्यू पर। अगर EMF जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस साइड से वो लो की तरफ जाएगा, ठीक है ना। सपोज़ अगर E2 50 है और E1 40 है तो ये डायरेक्शन ये वाली ठीक है जो बुक में बनी हुई है, लेकिन बुक पे उन्होंने हमें ऑलरेडी खुद बना के दे दी है, तो इससे हमें ये शो हो रहा है यहाँ पर कि E2 जो है वो हायर होगा और E1 क्या होगा, वो लोअर होगा। देखें बेटा वैल्यूज़ गिवन है, E2 60 वोल्ट E1 और यहाँ पर हमारी E1 40 वोल्ट, सो इट मीन्स कि E2 से E1 की तरफ हमारी डायरेक्शन करंट की शो होगी। एक बात समझ आ गई। अब हम इक्वेशन राइट करने की तरफ चलते हैं कि इक्वेशन हमने किस तरह से राइट करनी है। तो फर्स्ट मैं राइट करती हूँ यहाँ पर E2 से हम स्टार्ट ले लेते हैं अपना, ठीक है। आप E1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, राइट, E2 से ले लें क्योंकि आपने यहाँ से इस तरह से स्टार्ट किया है। इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, E1 से स्टार्ट ले लें या E2 से ले लें, ठीक। मैं बुक के अकॉर्डिंग वैसे कर लेती हूँ, मैं भी E1 से ही स्टार्ट ले लेती हूँ, ठीक है जी। E1 पे बेटा आप यहाँ क्या करेंगे, ये चार्जेस हैं यहाँ से मूव करके E1 के पास आए हैं, तो पहले हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब चार्जेस जाते हैं एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, नेगेटिव साइन आएगा, माइनस E1 डेल्टा क्यू। मोस्टली हम डेल्टा क्यू को नहीं लिखते क्योंकि डेल्टा क्यू जो है वो सब में कॉमन आता है और इज इक्वल टू 0 हो जाता है, उसको फिर हम नहीं राइट करते। अगर आप कहते हैं तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम E1 डेल्टा क्यू। फिर यहाँ पे इसको किस तरह हम राइट करेंगे, ये हमारा बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हायर है ये लोअर है, इसको आप याद लिखेंगे I1 माइनस I1 R1 डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, चार्जेस हैं। अब बेटा यहाँ पे आ जाएं R2, यू कैन सी हियर दिस R2 इज़ कॉमन इन बोथ लूप, R2 I1 और I2 दोनों में कॉमन है, उनके दरमियान में आ रहा है। अगर बेटा इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम बात अभी फर्स्ट वाले लूप की कर रहे हैं ना, I1 वाले की, तो इस कंडीशन में हम इस तरह से राइट करते हैं माइनस I1 माइनस I2, I1 में से I2 को माइनस कर देंगे, और अगर हम सेकेंड लूप की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम I2 माइनस I1 कर देते हैं। हम लिखेंगे I1 माइनस I2, साथ में क्या है R2, और डेल्टा क्यू क्या है, ये वो चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, अपनी सेकेंड जो बैटरी है E2 की तरफ। अब यहाँ देखें नेगेटिव से लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, व्हेन चार्जेस मूव फ्रॉम लोअर टू हायर प्लस साइन, प्लस
आप क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर E2 और साथ में डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन राइट करें। अब डेल्टा Q का सब में कॉमन लेके 0 कर सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बनती है -E1 माइनस I1 R1 माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 R2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एग्जाम्पल थी, यानी ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। तो आप बेटा बुक पर भी देख सकते हैं -E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2 R2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। सेम वही इक्वेशन बनी जो बुक में है। तो इसी तरह से आपने ट्राई करनी है। राइट दिस इक्वेशन फॉर सेकेंड लूप। So now Kirchhoff's second rule is completed. This is very, very important. Your homework is that learn and listen the video attentively. After listening, learn the topic, and after learning, do one time written practice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.